Hello everyone, welcome to Aptly Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial would be discussed in this session. So let's get started with today's topic list. Today is 27th of September. The first topic is PM Digital Mission, which is something very important both for your prelims as well as for the mains examination. Second, Chief Justice of India bats for women reservation in judiciary. Third, Government Industries Panel to review the manufacturing. The second last, ICMR releases a report on cancer in India. And the last is flood management that cannot be vote lockdown. So this is an editorial from the Hindu. Apart from this, there would be some MCQ based questions और ये जो questions होंगे current affairs पे होंगे so that it can help you in the upcoming prelims examination. So without any further ado, let's get started. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Aptly Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. So the first news of the day, that is PM Digital Health Mission, something which is important for General Studies Paper 2, issues related to development and management of health. So why PM Digital Health Mission is important for India, how this is going to benefit the citizen of this country, we'll see that. So recently, the Prime Minister of India, basically आज के दिन अगर बात करें, today it is expected that 27th of September, the Prime Minister would be inaugurating the PM Digital Mission, Health Mission, जिसको PM DHMB कहेंगे, right? And currently PM DHM is being implemented in a pilot phase in the 6 union territories. और ये जो project होगी, this would be a pilot project under National Digital Health Mission that was announced by the Prime Minister during his recent Independence Day speech. So what is the vision of this basically National Health IDs, or you can say National Health Card? So first it called for an efficient way of functioning, accessible to each, inclusive in its manners, affordable to the people, timely bond facilities would be given, and it is completely safe for the people of this country because their document, their other valid essential credential that is required would be safe. Now what are the advantages of PM DHM? तो बात करें PM DHM की, this create a seamless online platform through providing a wide range of data, right? और इसके अलावा they would be having information and infrastructure services जो कि open होगी, interoperable होगी, standard based digital system होगी, and it will also ensure security, confidentiality, privacy on health related personal information, because a lot more data would be taken from the government for an individual and that need to be private and secure. सिटीजन की कंसेंट की जरूरत होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर दे वुड इनेबल द एक्सेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड्स विद सिटीजन विद देयर कंसेंट. तो बिना एक इंडिविजुअल के कंसेंट्स के इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं की जाएगी. एंड द मिशन एम्स टू क्रिएट द इंटरऑपरेबिलिटी विद द डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, जहाँ पे जिस तरह से यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम की रोल की गई थी उसी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि डिजिटलाइजेशन भी हेल्थ सेक्टर में लाया जाए. And the fact is that during the COVID, we have realized how important is to augment our health infrastructure and health facilities. Now, unique health card दी जानी है सभी एक individual को. So the key component of PM Digital Health Mission would include health IDs. तो हर एक individual को health ID मिलेगी, and every citizen that will work for their health account, which will have a personal health record that will be linked with the help of their mobile applications, right? तो mobile number के through आप register करवा सकते हैं. It is same like Aadhaar card, you have all your details. With this health IDs, or you can say digital health mission, the complete details of an individual health would be there in a repository form. तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं उनके पास जो HPR होती है, खासकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्टर एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्टर, दे विल एक्ट एज अ रिपोजिटरी. इनके पास सारी डेटाज होंगी. They would be collecting all the information, relevant data of an individual. और ये हेल्थ सर्विसेज जितने भी हैं मॉडर्न एंड एडिशनल सिस्टम मेडिसिन में, उसमें जितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो उनको मुहैया कराई जाएगी. And this would ensure that the ease of doing business for the doctors and hospital and healthcare service provider would be there, right? If you do not carry your documents, everything would be saved in a digital format. Unnecessarily, you do not need to carry that documents. It would be there in a repository form with the healthcare professional register.
Now इसके साथ सैंडबॉक्स भी रिलीज की जा रही है. तो सैंडबॉक्स वुड क्रिएट अ पार्ट ऑफ मिशंस विच एक्ट एज अ फ्रेमवर्क फॉर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग. जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है हेल्थ केयर सेक्टर्स में उनको हेल्प करेगी. दैट इंक्लूड प्राइवेट प्लेयर्स या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें. इवन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल वुड बी बेनिफिटेड अंडर द पार्ट ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बिकॉज the government is looking forward for an health information provider and health information user, right? So India is looking in a way that where it can have a surplus of health information providers as well as the health information users, and ultimately this will benefit a lot more citizens of this country because a repository would be created which would be having a seamless services in any corner of the India, right? So if you see in a nutshell, this is an infograph that will give you a quick revision whatever we have discussed. तो digital health system maintain की जाएगी, एक improve quality of services मिलेगी लोगों को. It will provide for a framework of interoperability and healthcare data. Fast track creations होंगी, accurate data जो है वो inform की जाएगी, उनको update किया जाएगा उसके थ्रू पूरे entire इंडिया में. की बिल्डिंग ब्लॉक्स की अगर बात करें, हेल्थ आईडी मिलेगी, पर्सनल हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, डीजी डॉक्टर्स, हेल्थ फैसिलिटीज, टेलीमेडिसिन एंड ई फार्मेसी. सो दीज आर सम ऑफ द की बिल्डिंग्स. मेक श्योर यू आर थॉरो विद दिस बिकॉज इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे कैन आस्क यू फ्रॉम दिस ऑल्सो. गाइडिंग प्रिंसिपल की अगर बात करें, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इंक्लूसिविटी और सीमलेस पोर्टेबिलिटी. सो दीज आर सम ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल. Now, the Chief Justice of India bats for women reservation in judiciary. This is something which is very important for your general studies paper 2. So, the Chief Justice of India himself, the Mr. N.V. Ramana, he has categorically said and he has advocated for increasing gender diversity in the legal education, or you can say the participation in judiciary. So, what he said that the women lawyer should raise their voices with anger and they should pitch for 50% of the reservation in judiciary. This is what exact line he has said. He said that you need to fight, you need to raise your voice to get the reservations, right? And the Chief Justice has said that he also favored that increasing gender diversity in legal educations. Now, women participations की अगर बात करें जुडिशरी में, so the women constitute about 30% in the lower judiciary. If you talk about the High Court, among the High Court, 11.5% is there in the High Court and 12% in the Supreme Court. As of now, Supreme Court की जो total strength है 34, उसमें 33 ही अभी functional है. This is there. अभी तक 1 जो है वो vacant है. In total 33 में we have 4 women judges, right? So 4 women judges हैं. फर्स्ट वॉज देयर और अभी जो न्यूली 3 अपॉइंट की गई, राइट? दीज आर द न्यूली अपॉइंटीज. सो द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन टर्म्स ऑफ वुमेन. नाउ 1.7 मिलियन एडवोकेट्स हैं जिसमें 15% आर वुमेन्स एंड दे मेक ओनली 2% ऑफ द इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट बार काउंसिल. स्टेट बार काउंसिल में जो रिप्रेजेंटेशंस है वुमेन्स की वो सिर्फ 2% है एंड इवन देयर इज नो वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. सो इफ इट इज बीइंग आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, मोस्टली आपके मेंस के लिए रेलिवेंट है, तो इस तरह के फैक्चुअल पॉइंट्स बेस्ड काफ़ी रेलिवेंट होंगे. सो मेक श्योर यू इनकॉर्पोरेट दिस इन योर नोट्स इफ यू मेंटेनिंग अ नोट्स, और ईदरवाइज यू कैन टेक इन अ पॉइंटर फॉर्मेट ऑल्सो. क्या क्या चैलेंजेस है वुमेन्स के लिए इन जुडिशरी? So the first is gender stereotype. तो Chief Justice of India Mr. N.V. Ramana ने कहा है कि difficulties हैं women's को, that is regarding the legal professions including gender stereotype, where it is being argued कि women's उतनी अच्छे से इस professions को carry forward नहीं कर पाती हैं. This is a stereotype. This is not actual the reality, right? So preference over the client of male advocate is more. This include कुछ और factors जो हैं like infrastructures, washroom, क्राउडेड कोर्ट, ये भी सारे फैक्टर्स हैं जिन वजह से वुमेन्स की पार्टिसिपेशन अभी तक पूरी तरह से एक्टिवली नहीं रही. नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इशू विच हैज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये पॉइंट आउट किया दैट एट द प्रेजेंट जितनी भी हमारे कोर्ट्स हैं 6000 ट्रायल कोर्ट हैं, उसमें नियरली 22% ही कोर्ट्स में वुमेन्स के लिए टॉयलेट या बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं. एंड गवर्नमेंट ने रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एडवोकेट किया था इसके लिए. एंड जुडिशरी हैज़ कम अप विद द नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर
corporation where they would ensure a inclusive design of the court complexes. So ultimately ये एक ऐसी court complexes होंगी जो basic जो necessities हैं, चाहे वो hygiene को लेकर के हो या फिर basic essential amenities को लेकर के हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे provide की जाएंगी. Now, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज पैनल टू रिवाइव द मैन्युफैक्चरिंग. एज वी नो दैट कोविड के बाद सारे सेक्टर्स की परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी रही है. नाउ दिस इज द टाइम, अगेंस्ट द क्वार्टर इज रिमेनिंग, दिस इज द टाइम दैट गवर्नमेंट नीड टू रिवाइव इट. So this is something which is important for General Studies Paper 3, inclusive growth and issues arising from it. So the government is looking forward to ramp up the manufacturing, जो कि severely impacted थी because of the COVID-19 pandemic. और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो मीटिंग थी उन्होंने स्टेक होल्डर के साथ की है. देयर इज अ स्टीयरिंग कमेटी फॉर द लोकल वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, जिसको हम स्केल के नाम से भी जानते हैं. इफ इट इज बीइंग आस्क्ड इन एग्जामिनेशन व्हाट डज स्केल स्टैंड फॉर, दिस इज स्टीयरिंग कमेटी फॉर लोकल वैल्यू एडिशंस मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स, राइट. तो इसको जो स्केल है उसकी क्या पर्पस है, व्हाट इज द मेन रैशनल. सो दिस इंक्लूड टॉप ब्रास फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, CII, FICCI एंड ASHCOM और कुछ रिप्रेजेंटेशंस होंगी गवर्नमेंट की तरफ से. तो ये बात हो गई रिप्रेजेंटेशंस की. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन रीजन, व्हाट इज द एम ऑफ द स्केल इनिशिएटिव. तो फोकस की अगर बात करें इस स्कीम की, सो द स्कीम एम्स एट नेविगेटिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एनीवेयर फ्रॉम द इम्पोर्ट डिपेंडेंस पिटफॉल्स एक्सपोज टू द पेंडेमिक. उसके अलावा बहुत सारे वेरियस प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ. उस 17 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई की गई है, दैट इंक्लूड टॉयज, टेक्सटाइल, फर्नीचर्स, ई साइकिल्स, ड्रोन एंड फिशरीज. सो इसके अलावा भी और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिनमें प्राइवेट सेक्टर के साथ एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाएगी. दिस वुड बी ऑन अ PPP मोड. And India has a multiple similar committees over the past few decades to enhance the manufacturing in the economy. But we can be very sure that इसके जो results थे बहुत ज़्यादा positive नहीं है, and we need to work upon it so that we can get a conclusive results. Now how scale is different from other schemes? अगर बात करें बहुत सारे तरीके से डिफरेंस है. कुछ दो important तरीके की अगर बात करो, this is no deadline and drafts are there. कोई वॉल्यूमिनस रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं. प्रपोज्ड ऑल लेड आउट रिप्रेजेंटेशन एट इट्स बेस्ट. तो इस सेक्टर को अच्छे से परफॉर्म करने का मौका दिया जाएगा. जितने भी इंक्यूबेशन टाइम है दैट वुड बी प्रोवाइडेड एंड इट फॉलो अ रिगरस प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन टू अलाइन विद द फ्रैक्शन ऑफ इंडस्ट्री. जो भी बेस्ट एक्सपर्ट्स ओपिनियन है उस सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए उसकी कोशिश की जाएगी with various agenda at multiple level, right? So this is what the scale is all about and how this is different from many others manufacturing scheme that is already functional in India. Now ICMR ने एक report release की है regarding the cancer in India. We'll see how the cancer patients have to functions और कितने difference है men's और women's में. So this is something which is important for General Studies Paper 2, issues related to development and management of health. According to the Indian Council for Medical Research, जिनकी एक नई रिपोर्ट आई है दैट इज क्लिनिको-पैथोलॉजिकल प्रोफाइल फॉर द कैंसर इन इंडिया. एक रिपोर्ट है जहाँ पे हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्टर की जो पेशेंट्स हैं 2021 के उनके बारे में स्टडी की गई है. तो प्रपोर्शनेटली इस स्टडी में ये पता चला है कि जो मेंस हैं they have the higher chance of cancer. So they have 52.4% more chances compared to women, which is only 47.4% chances of having any type of cancers. We'll understand the different type of cancers also. So ये आप देख सकते हो कैंसर की प्रेवलेंस की अगर बात करें, ये 2012 से लेकर के 2019 तक की डेटा है. सो एज आई टोल्ड यू मेंस की परफॉर्मेंस, मेंस हर महीने में ज़्यादा है, कहीं कहीं कम है. तो ल्यूकेमिया बॉयज़ में ज़्यादा है. उसके बाद जो मेलिगेंट बोन ट्यूमर है दैट इज 7.1 इन बॉयज़ एंड 9.5 इन वुमेन्स, राइट. उसके बाद लाइफोमाज है, रेटिकुलोइडल्स नियोप्लाज्माज है 16.6 है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो डिफेक्ट्स हैं मिसलेनियस इंटरक्रैनियल और इंटरस्पाइनल नियोप्लाज्मा 6.2 इन बॉयज़ एंड 7.3 in girls. ये सारे टेक्निकल दिस आर द बायोलॉजिकल टर्म्स और मेडिकल साइंस टर्म, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस. सॉफ्ट टिश्यूज स्कार्मास की अगर बात करें दिस 5.9, दिस इज 6.9. रेनल ट्यूमर्स की अगर बात करें दिस 3.7 to 4.7 इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. एंड अगेन सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम ट्यूमर्स में बॉयज़ 3.4 और जो गर्ल्स है दैट इज 3.9, right? Now let's understand more about this report, what actually ICMR has scored.
तो उन्होंने कहा है जितने भी गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स हैं, दिस इज disease which is related to women. Gynecology is a field which is more exploring on the women's part, so that include breast cancers. और इसमें बताया गया कि जो हाफ ऑफ द कैंसर है दैट इज अ ब्रेस्ट कैंसर, चाइल्डहुड में 0.4 ईयर्स तक के कैंसर को कंस्टिट्यूट किया गया। एंड द रिपोर्ट सेज दैट द कैंसर of the head and neck region account for nearly 1/3, that is 31.2% among all the cancers, right? ये सबसे ज़्यादा है। The highest portion of cancer from the all sites were reported between the age group of 45 to 64. तो ये जो एज ग्रुप है ये सबसे ज़्यादा प्रोन है एक्सपेक्टेड प्रोस्ट कैंसर इन मेंस एंड दोज विद द हायर ऑफ 65 ईयर ऑफ एज। जितने भी टोटल नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स हैं उसमें ये पाया गया 96 हॉस्पिटल्स अंडर द कैंसर रजिस्टर प्रोग्राम में पाया गया कि ऑलमोस्ट 96 हॉस्पिटल से 13,32,207 पेशेंट्स एडमिट हुए या फिर दे वर डायग्नोस्ड विद द कैंसर्स। साइट स्पेसिफिक कैंसर की अगर बात करें किस पर्टिकुलर साइट्स में इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा है बॉडी के किस पार्ट में, सो रिलेटिवली साइट स्पेसिफिक कैंसर की अगर बात करें कंपेयर टू मेन एंड वुमेन एक्सेप्ट द थायराइड कैंसर, राइट? तो वुमेन में थायराइड कैंसर 2.5 है कंपेयर टू मैन विच इज ओनली 1%। सो वुमेन आर मोस्ट प्रोन टू द थायराइड कैंसर। गॉल ब्लैडर की बात करें सो यहाँ पे वुमेन की रेशियो 3.7% के आसपास है एंड इन मैन इट इज़ ओनली 2.2। तो कुछ जगह पे women's की में कैंसर ज़्यादा देखी गई हैं। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट ओवर 1/3 ऑफ द पेशेंट्स इन द डेंजर हैव देयर कैंसर इन टंग, लैरिंक्स, थाइफॉइड, कॉर्पस यूटेराई, किडनी, ब्लैडर्स, रेटिनोब्लास्टोमा एंड लोकलाइज्ड डिजीज विद द टाइम ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। तो बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पे भी कैंसर्स देखे गए हैं अलग अलग पेशेंट्स में एंड दीज कंप्राइजेज 1/3 ऑफ द टोटल कैंसर पेशेंट्स। How the treatment is done, as we know for cancer we have chemotherapy. This is the most typical treatment and the modality of all cancer regardless of clinical extent. तो इसमें जितने भी डिजीज़ हैं उसको रिप्रेजेंट की जाती प्रेजेंटेशन होती है इंक्लूडिंग द कैंसर्स ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टोमक, लंग्स एंड चाइल्डहुड कैंसर, राइट? सो स्टिल chemotherapy is the most advanced way to treat the any type of cancers, but it has its own repercussion in the body. इसके adverse side effects भी होते हैं। Now the other news, this is basically an editorial that call for flood management that cannot be worn down. So this is something which is important for General Studies paper 2, India and its neighborhood relation. Why this is important in this topic? Because यहाँ पे इंडिया और नेपाल की जो फ्लड्स है और दोनों गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशंस हैं एंड जो कुछ कोऑर्डिनेशंस के बीच में जो कमी हुई है उस केस को कैसे फुलफिल की जा सकती है और खास करके बिहार के जो लोग हैं उनको कैसे बेनिफिट्स मिल सकती है इसके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ वाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज़ पेपर 2। ऑल्सो ये जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप इसको जनरल स्टडीज़ 1 में जो फिनोमिनन है जोग्राफिकल फिनोमिनन वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। Now, what are the important issues under this editorial? So I have segregated this into 5 subhead. First is background. Second would be pending projects, flood protection work, maintenance of work on the Gandhak barrage, और last is way forward. तो पूरी editorial की जो theme है that talks about the flood management between India and Nepal. So over few years ये देखी गई है बिहार के जो कई districts हैं वो face कर रहे हैं serious challenge of flood और मैसिव फ्लडिंग की वजह से काफ़ी लोगों की जान माल की नुकसान होती है। मेनी पीपल लॉस देयर लाइफ, मेनी पीपल लॉस देयर होम, मेनी पीपल हैव लॉस देयर लाइवलीहुड एंड अल्टीमेटली दे आर बिकमिंग मोर पुअर ड्यू टू दिस फ्लडिंग, राइट? So this year the problem has doubled due to the coronavirus pandemic. We know that even in the pandemic also Bihar was severely impacted. So flooding plus pandemic has resulted the most adverse situation in the Bihar. So it is the time to look upon the key aspects of India-Nepal flood management. If this thing is managed, we can definitely reduce the number of flood that is coming to Bihar districts. Background की अगर बात करें why this is happening, तो बिहार some of the Nepal biggest river system की अगर बात करें that originate in the Himalayan glacier is flow to India through Nepal, right? Basically जो नेपाल की जितनी भी रिवर्स हैं जो हिमालयन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है वो फाइनली फ्लो करती है कहाँ पे? दैट फ्लो इन बिहार इन इंडिया, राइट? सो दिस इज द रीजन वी हैव सीन दैट ऑलवेज एवरी ईयर वी सी फ्लड इन द बिहार, राइट? तो ड्यूरिंग द मॉनसून्स द रिवर सिस्टम फ्लड एंड काउजिंग प्रॉब्लम टू द बिहार। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं
दैट इज बीइंग सीवियरली इम्पैक्टेड, और उस वजह से लोगों को इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ती है. Now, it is necessity that the process of driven coordination between the center and the government of Bihar to handle this problem. और नेपाल के जो तराई रीजन्स हैं, खास करके जो नॉर्थ बिहार है, जो मिथिलाचंद रीजन्स हैं, वहाँ पे भी बात कही गई है कि इसके लिए एक प्रॉपर हमें काम करने की ज़रूरत है. नेपाल के साथ जो नेपाल गवर्नमेंट है उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाने की ज़रूरत है, so that we can reduce this. If all the checks and balances would be made between India and Nepal and the Bihar government, we can be rest assured कि बहुत ज़्यादा जाल माल की जो नुकसान है उसमें कमी लाई जा सकती है. तो कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, सो वी हैव सीन दैट अ लॉन्ग टर्म मेजर्स वेयर देयर टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, जो रिकरेंट फ्लड होती है बिहार में. तो एक प्रोजेक्ट है जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफिस बिराटनगर, दैट वाज एस्टैब्लिश इन नेपाल 2004. इसको प्रिपेयर करने की बात कही गई थी और हाई डैम बनाने की बात की है नेपाल साइड में, दैट इंक्लूड कोशी, कमला एंड भागमती रिवर. तो आपसे ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. मेक श्योर यू नो अबाउट ऑल दिस रिवर, चेक इट आउट ऑन गूगल. और गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने ये मैटर को सीरियसली रेस किया है रेगुलर इंटरवल पे. बट अगर बात करें सेंट्रल वाटर कमीशन की, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की, इनको एक स्पेशल मीटिंग करने की ज़रूरत है एक्सपर्ट के साथ, ताकि इन्होंने ऑलरेडी मीटिंग भी की हुई है, राइट. एक जॉइंट टीम ने मीटिंग की थी टू असेस द सिचुएशंस ऑफ द प्रोजेक्ट. टू बेसिकली दे वर ट्राइंग टू इंश्योर कि अगर बिहार और नेपाल अपनी तरफ से इस तरह के कोलैबोरेशंस कर ले तो इस चीज़ों को काफ़ी रिड्यूस की जा सकती है, फ्लडिंग को, जो इस पर्टिकुलर रिवर से आ रही है, कोसी, कमला एंड भागमती. So despite the best effort from the government of Bihar, the task is unaccomplished after 17 years also. But definitely यहाँ पे जो ज़रूरी है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अलग से एडवोकेशंस की ज़रूरत है. They need to ask नेपाल गवर्नमेंट की why they are not considering this project, because ultimately जो भी खामियां, जो भी नुकसान है वो वहाँ के सिटीजन को उठानी पड़ रही है. Now flood protection works की अगर बात करें, in the existing India-Nepal agreement, so water resources from the state government is authorized to execute the flood or protections of critical stretches in Nepal territory around the India-Nepal border is very important. Or in the recent time, such flooding protections such have the way to be the carried out. यहाँ पे increasing flood resistance पे काम करने की ज़रूरत है. And during the COVID-19 pandemic, we have seen that the water resource department, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर काम करती है, इन्होंने काफ़ी चीज़ों को इंटेंसिफाई किया दो लेवल पे. फर्स्ट, जो लोकल नेपालीज अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने काम किया है, और इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपील की है टू फ्लड आउट द प्रोटेक्शन वर्क फॉर 2020, राइट. अभी तक इट हैज़ बीन 17 years वी डू नॉट फाइंड एनी conclusion from this agreement which was actually held between the Nepal, Bihar government and the central government. Now this is the time that need to work upon. So maintenance of work at Gandak barrage is something which is very important. Department of Water Resources जो बिहार गवर्नमेंट के अंदर है, उनको 4 न्यू फ्लड प्रोजेक्शंस की बात कही गई है गंदक बेसिन्स पे, एंड दे हैव प्रपोज्ड इन 2020. एक रिक्वेस्ट प्रपोजल भी भेजी गई थी बिहार के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेपाल रीजन में, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कि जो फ्लड प्रोटेक्शंस के लिए चीज़ों की ज़रूरत है उसको मेंटेन की जाए, प्रोटेक्शंस को और बढ़िया किया जाए, ताकि ये गंदक बैरेज में स्ट्रक्चर बनाया जाए जो कि लोकेटेड हो वाल्मीकि नगर पे. बट अगेन वी हैव टू सी द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दिस एंड दिस नीड टू बी एग्जीक्यूटेड एट द अर्लीस्ट. अब क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं? वी डेफिनेटली नीड टू वर्क अपॉन, और ये जो वर्क है वो बहुत जल्दी में होनी चाहिए विद अर्जेंट एंड प्रायोरिटी बेसिस. दिस इज समथिंग विच इज़ अ नीड ऑफ द आवर. तो ये ज़रूरत है कि जो बेस्ट स्पिरिट में दोनों कंट्रीज काम करे. इंडिया एंड नेपाल शुड स्टार्ट द वाटर डायलॉग, राइट, and they should safeguard the interest of the people who is actually affected. Not only from India but also from the Nepal people are being affected. तो सिर्फ इंडिया के लोग affected नहीं है, नेपाल में भी लोग affected हैं. Optimizations of infrastructure would be very important. एक अल्टरनेटिव पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है जो कि फ्लड मैनेजमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा. फॉर लास्टिंग सॉल्यूशंस, इंडिया और नेपाल जो अपने फ्लड के लिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनाइए, उनको लोकल रिप्रेजेंटेशन के साथ लिंक करने की ज़रूरत है, सो दैट अ प्रॉब्लम टू द लोकल अ प्रॉब्लम दैट इज इन द लोकलाइज्ड लेवल शुड बी गिवन द लोकलाइज्ड सॉल्यूशंस, राइट. हर लोकलाइज्ड प्रॉब्लम के लिए लोकलाइज्ड सॉल्यूशंस की ज़रूरत है. वाटर कॉपरेशन शुड बी द नेक्स्ट बिग बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल डायलॉग. और फ्लड को कंट्रोल करने के बाद जो वाटर रिसोर्सेज है एक कॉमन डेवलपमेंट हो जाएगी. कॉमन डेवलपमेंट भी अगर बात करें, अगर फ्लडिंग होती है उस एरिया पे, सो वी कैन वर्क अपॉन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशंस, वाटरवेज,
जो इंडिया नेपाल की रिलेशंस है वो फर्दर स्ट्रेंथन हो सकती है। तो हमें ज़रूरी है कि हम फ्लडिंग को कंट्रोल करें और पोटेंशियली जो वाटर रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करें, राइट। इफ फ्लडिंग वुड बी देयर वी कैन नॉट यूटिलाइज दैट वाटर, बट इफ वी कंट्रोल दैट तो वाटर की जो रिसोर्सेज है उसको सब्सटैंशियली पोटेंशियली सब जो एक सस्टेनेबल ग्रोथ है वहाँ पे यूटिलाइज की जा सकती है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, वाटरवेज, इन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए, राइट। सो वी हैव टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस एंड वी हैव टू वर्क अपॉन सो दैट जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं फ्लडिंग के वो कम हो सके। नाउ कमिंग टू द MCQ क्वेश्चंस ऑफ द डे, बिफोर आई प्रोसीड विद द क्वेश्चंस ऑफ द डे, जस्ट टू टेल यू द आंसर्स। जो सैटरडे के क्वेश्चंस थे, फर्स्ट के करेक्ट ऑप्शन इज सी। फॉर द सेकंड क्वेश्चन आल्सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। टुडेज MCQ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में आपको बताना है। क्वाड वाज देयर इन द न्यूज मेनी टाइम्स। इफ यू नो द करेक्ट आंसर डू लेट मी नो। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आराम से पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में आपसे। इट एम्स टू इंश्योर फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन, राइट। सो इफ यू नो द आंसर डू लेट मी know in the comment section down below. Now moving to the second question of the day, consider the following statement about the Sambar Lake. It is the largest inlet salt lake in the world and it represents depression of the Aravalli Range, right? So if you're thorough with the geography, अगर आपने basic NCERT पढ़ी हुई है, so again this would be very easy for you to answer. So do participate, write your answer in the comment sections down below. This was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching.